السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آسان فقہ کو ہم پڑھ رہے ہیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نماز کے ارکان. ارکان الصلاۃ. ارکان الصلاۃ. نماز کے ارکان، نماز کے پلر. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے، جو ہمارا اس سے پہلے والا سبق تھا اس میں ہم شروط پڑھ چکے ہیں، شروط الصلاۃ. ٹھیک ہے. اچھا، شرط کی تعریف کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو ہینڈ ریز کرے. چلے. ہاں ڈاکٹر صاحب سنا ہے. استاد، کوئی ایسا لازمی کام جس کے نہ ہونے سے عبادت بھی نہیں ہوتی؟ جی. اور کوئی ایسا کام جس کے نہ ہونے سے عبادت بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی نماز مثال کے طور پر وضو کے بغیر پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. شرط عبادت سے باہر اور پہلے ہوتی ہے، اس کے برعکس رکن عبادت کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، شرط ہم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا کام جس کی نہ ہونے سے مشروط بھی نہ پایا جائے، اور جس کے ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ مشروط بھی پایا جائے. ہم نے دو الفاظ استعمال کیے تھے، شرط اور مشروط. مثال کے طور پر وضو شرط ہے اور نماز مشروط ہے. تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، مطلب شرط کے بغیر نماز نہیں ہے. اب جب آپ نے وضو کیا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی نماز بھی ہو گئی، کیونکہ نماز اب آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو ٹھیک. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ارکان سے متعلق. ارکان جو ہے یہ رکن کی جمع ہے. رکن، رکن کہتے ہیں ہم لغوی طور پر پلر کو، ایک جانب کو، ایک سائڈ کو بھی ہم رکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن فقہی اصطلاح میں رکن کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا کام جس سے کسی چیز کی ہیئت بنتی ہو. کوئی ایسا کام جس سے کسی چیز کی صورت بنتی ہو، کسی چیز کی شکل بنتی ہو. مختلف الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے بھی یہ لفظ لکھا ہے نماز. یہ نماز کس چیز سے بنا ہے؟ نون سے بنا ہے، میم سے بنا ہے، الف سے بنا ہے، زا سے بنا ہے. تو یہ سارے جو حروف اس میں ہیں یہ اس کے ارکان ہے. اگر آپ نون کو ہٹائیں گے تو یہ رہ جائے گا ماز، یہ نماز کا معنی نہیں دے گا. اگر آپ میم کو ہٹائیں گے تو رہ جائے گا ناز. اگر آپ الف کو ہٹائیں گے تو رہ جائے گا نمز. اب رکن کس کو کہتے ہیں؟ جس سے کسی چیز کی شکل بنتی ہو. اس تعریف سے یہ بات واضح ہو گیا شرط اور رکن کے درمیان کیا فرق ہے. شرط عبادت کے باہر ہوتا ہے، یعنی عبادت کو ادا کرنے سے پہلے ہی آپ نے شرط کا خیال کرنا ہے. لیکن رکن یہی عبادت ہے، عبادت اسی سے بنتی ہے، یہ عبادت کے اندر داخل ہے. یہ فرق ہے شرط اور رکن کے درمیان. تو چلے ابھی ہم پڑھتے ہیں
अरकानु सला, अरकानु सला, अरकानु सलाती अरबाअत अशर, अरबाअत अशर का मतलब होता है 14, 14, ठीक है 14। पहली शर्त जो है वो है अलकियामु मअल कुदरा, अलकियामु मअल कुदरा, कि अगर आपके पास कुदरत है, इस्तिताअत है, तो आपको कियाम करना जरूरी है, यह रुकन है, यह रुकन है, ठीक है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी इमरान बिन हुसैन को कहा था कि आप जब नमाज पढ़ें तो नमाज को आप खड़े होकर पढ़ें, अगर आपकी इस्तिताअत नहीं है तो बैठ के पढ़ें, अगर बैठ के भी इस्तिताअत नहीं तो आप लेट के पढ़ सकते हैं। तो मतलब यह है कि क़ियाम करना नमाज के अरकान में से है, क़ियाम, क़ियाम, ठीक है। तो यहाँ से बाज लोगों की इस गलती की भी हम निशानदेही करेंगे। बाज लोग नमाज में मिसाल के तौर पर उनको डॉक्टर कहता है कि आप जो है रुकू को नहीं जा सकते, आप बिल्कुल जिस तरह हम रुकू में होते हैं उस अंदाज से आप रुकू नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका मर्ज बढ़ेगा। तो ठीक है, उस सूरत में वो रुकू को इशारे से भी कर सकता है, जितना वो झुक सकता है उतना झुके, बस उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे नमाजी हजरत क्या करते हैं, वो पूरी नमाज को ही बैठ के पढ़ देते हैं। बाज लोग कुर्सी पे पढ़ते हैं, बाज लोग बैठ के पढ़ते हैं, अब तो ये फैशन ही निकला है, कुर्सी पे नमाज पढ़ो, अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है। मतलब नमाज की कोई अहमियत ही नहीं है, जिस तरह चाहो पढ़ो, ये देखने के बगैर कि क्या इस तरह पढ़ना जायज है कि नहीं। बंदा घर से आता है चल के आता है घर से, मस्जिद में आता है, तो जब क़ियाम करने की बारी आती तो वो बैठ जाता है कुर्सी पे, ये कौन सी नमाज है। कुरान ने कहा वो कूमू लिल्लाहि कानितिन, अल्लाह के लिए आप खड़े हो जाओ, खड़े खड़े रहकर नमाज पढ़नी है, वो बैठ जाते हैं कुर्सी पर। हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप खड़े नहीं रह सकते ज्यादा देर, लेकिन जितनी देर आप रह सकते हैं खड़े, उतनी देर आपको खड़ा रहना है। कुरान ने कहा फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी आप में इस्तिताअत है उतना आप तकवा इख्तियार करें। तो जितनी देर आप खड़े रह सकते हैं उतनी देर आप खड़े रहें। जो ही आपको लगे कि आप मुझे थकावट महसूस हो रही है, थकावट से मेरी मुराद कि मुझे मशक्कत हो रही है कि मैं गिर न जाऊं, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि नमाज के अंदर जो खुशू खुजू है वो खत्म हो सकता है। अच्छा, ये हर एक थकावट मुराद नहीं है कि बहुत सारे लोग मतलब वो ऐसे ही काम करके थक चुके होते हैं, वो थकावट मुराद नहीं है। यहाँ से कोई मर्ज मुराद है, मर्ज कोई लाक होता है जिसकी वजह से इंसान के गिरने का खतरा होता है, चक्कर आने का खतरा होता है, इस टांगे जो है इंसान की ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तो फिर वो बैठ जाए, लेकिन शुरू वो खड़े होकर ही करे, ठीक है। तो ये जो है क़ियाम, ये नमाज के अरकान में से है, अरकान में से, अरकान में से रुकन है, इसी से नमाज बनती है, इसी से नमाज बनती है। दूसरा रुकन है तकबीरतुल इहराम, जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, तकबीर तहरीमा, तकबीरतुल इहराम यानी तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा आप पढ़ेंगे अल्लाह अकबर। तकबीर तहरीमा के लिए शर्त यह है कि आप क्या करें, आप अल्लाह अकबर पढ़ें, अल्लाह अकबर पढ़ें, कोई और जिक्र आप नहीं कर सकते। आप अल्लाह अजल या अर्रहमान अकबर दूसरे अल्फाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह अकबर ही पढ़ना है, ठीक है। और अल्लाह अकबर के साथ रफ़ुल यदैन करना यह सुन्नत है।
ये सुन्नत है, लेकिन ये ना तकबीर कहना ये फर्ज है, रुकन है। इसके बगैर आपकी नमाज ही सही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की इब्तिदा तकबीर तहरीमा से होती है और नमाज की इंतहा सलाम से होती है। इसका मतलब यह है कि नमाज के अरकान में से एक बुनियादी रुकन क्या है? तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर नहीं करना है, ठीक है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अलिफ पे जबर है, अल्लाह। जुबान से कहने, दिल में नहीं कहना है, दिल में नहीं, नहीं। जुबान आपको हिलानी है, जुबान आपको हिलानी है, हिलानी है, ठीक है? अगर तुम खुद ही सुनो, बाकी और कोई ना सुने, लेकिन जुबान आपको हिलानी है। वो दिल ही में पढ़ना ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। जुबान आपको हिलानी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क़िराअतुल फातिहा, तीसरा रुकन है, सूरतुल फातिहा पढ़ना, सूरतुल फातिहा पढ़ना। अब देखिए, इस बीच कुछ चीजें आ रही है ना जो सुन्नत है। मिसाल तक तकबीर तहरीमा के बाद जो अज़कार है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो सुन्नत है, उनको उनका जिक्र अलग से आएगा। यहाँ पे बस अरकान का जिक्र हो रहा है कि अगर आपने इनका ख्याल किया तो आपकी नमाज हो गई, आपकी नमाज हो गई। तो क़िराअतुल फातिहा ये रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज ही नहीं है। चौथा रुकन है अर रुकू, रुकू करना, रुकू करना। रुकू कैसे करेंगे आप? बिल्कुल आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी कमर टेढ़ी हो। ये जो अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम देखते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो आपके कमर पर अगर एक पानी का गिलास रखा जाता, वो सीधे रहता, वो गिर नहीं जाता। इस तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर जो है सीधी रहती थी रुकू में, ठीक है? इसी तरह रुकू में आपको इत्मीनान से जाना है, इत्मीनान से रहना है, ठहरना है, ठहरना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कव्वे जैसी वो मारते हैं, यहाँ से अल्लाह अकबर, वहां से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फिर सूरत फातिहा ज़मसूरा, अल्लाह अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। ऐसी नमाज का कोई 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 भी जो है अल्लाह की यहाँ मकबूलियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक शख्स आ गया मस्जिद में, उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सलाम की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप वापस जाओ। क्यों? आपने नमाज ही नहीं पढ़ी। हालांकि उसने नमाज पढ़ी, 2-3 बार आपने ऐसा ही कहा उसको, वो 3 बार बेचारा नमाज पढ़ के आया। अल्लाह के नबी ने उसको बार बार कहा, इरजे फसल्ली फ़इन्नक लम तुसल्ली, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर उस सहाबी जलील ने कहा कि मुझे सिखाइए कि नमाज का तरीका फिर क्या है। सहाबा भी थे ना, अल्लाह अकबर, अजीब किस्म के लोग थे वो। मतलब आज के किसी इंसान को अगर एक ही बार कहा जाए कि आपकी नमाज सही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बात करेगा आपसे। वो तो मेरे ख्याल से लड़ाई भी कर सकता है। लेकिन सहाबा का मिजाज ही अजीब था, मतलब अल्लाह ताला ने उनको चुना ही था, चुना ही था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए, जो हदीस में आया है। तो वो आगे कहा कि मैं इससे ज्यादा अच्छी नमाज नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह के नबी ने उसको समझाया कि अच्छी नमाज किसको कहते हैं, तफसील से बता दी। तो उसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम रुकू करोगे तो रुकू में आप इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से रहना, ठहर कर रहना, मुतमइन हो जाओ। ऐसा नहीं कि आपने रुकू किया तो उठो सीधे, नहीं, ऐसा नहीं। रुकू
आपने अच्छे से करना है, अच्छे से करना है। अच्छा, आवाज आ रही है सबको? चैट में बता दीजिए, चैट में आवाज आ रही है कि नहीं। चलिए, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद है अल इअ्तिदालु मिन रुकू। रुकू के बाद आपने क्या करना है? उठना है, सीधे हो जाना है, सीधे सीधे हो जाना है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, और जो गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। वो जब नमाज पढ़ते हैं, जो ही वो रुकू से उठते हैं फौरन वो जाते हैं वापस सजदे में। ये तरीका सही नहीं है। जब आपने रुकू मुकम्मल किया और रुकू से आप उठे, बिल्कुल सीधे रहिए, आप सीधे। ठीक है? यानी जिस अंदाज से आपकी हड्डियां थी रुकू से पहले, उसी अंदाज में आपके आज़ा वापस आने चाहिए, वापस आने चाहिए जिस तरीके से थे। अच्छा, छठा रुकन, असुजूदु अलल अअदाइ सबअ, सात आज़ा पर सजदे करना। सात आज़ा यानी जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें से आठ पार्ट्स पे आपने सजदे करने हैं। दो हाथ हैं, दो घुटने हैं, और दो पैर हैं। ठीक है, तो हो गए छः। नाक हो गई सात, और आपका जो माथा है वो हो गए आठ। इन सात आज़ा पे आपने सजदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअती अज़ुम। फरमाया कि मुझे हुक्म किया गया है कि मैं सात हड्डियों पर, सात आज़ा पर सजदा करूं, सजदा करूं। बाज लोग समझते हैं कि अगर आप ग्लोव्स पहनेंगे तो ये रुकावट बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बाज लोग अपने माथे से टोपी को हटाते हैं सजदे में, तो ये टोपी हटाना, ठीक है, माथे से जरूरी नहीं है। इससे आपका सजदा खराब नहीं होगा। जिस तरह आपने सॉक्स पहने होते हैं, मोजे पहने होते हैं, तो उससे आपके सजदे में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी तरह अगर आपने टोपी पहनी है, आपके माथे पर टोपी है, आप उसको लेकर सजदा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुराद ये है कि ये सात आज़ा जमीन पर गिरने चाहिए। अल्लाह अकबर, ये मतलब आजिजी की इंतहा है कि इंसान जमीन पे आके गिर जाए, जमीन पे आके गिर जाए। अगर इंसान को इस चीज का एहसास हो कि मैं कितना आजिज होके गिर रहा हूं, तो वो उसको अल्लाह की कदर आ जाएगी, अल्लाह की कदर आ जाएगी। मतलब वो खुद को गिरा रहा है जमीन पर अल्लाह के सामने, और अल्लाह इससे कितना खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के करीब, सबसे ज्यादा करीब तब होता है जब बंदा सजदे में होता है। कि सजदा एक इंतहा है, सजदे से ज्यादा इंसान गिर नहीं सकता। इंसान खुद को इतना गिरा देता है कि वो जमीन पे आके गिर जाता है अल्लाह के सामने। तो फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे के करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब उसी वक्त होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने इसको रस्म समझा हुआ है। हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है हम किसके सामने झुक रहे हैं, किस जात के सामने हम झुक रहे हैं। अगर हमें इस चीज का एहसास होता, तो सजदों के बाद जो हमारी हालत है वो नहीं होती। मतलब नमाज पढ़ के हम क्या कर रहे होते? वही हराम खाना, वही हराम गुफ्तगू, वही हराम चैटिंग,
वही हराम कारोबार, वही लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह, सब कुछ वही हो रहा है। तकब्बुराना अंदाज सजदे के बाद भी, हालांकि उसने जमीन पर खुद को गिरा दिया। हाँ, सातवां रुकन है अल इत्तिदालु मिन सुजूद, सजदों से उठना, सीधे रहना। जब आप सजदे से उठेंगे तो आप बिल्कुल सीधे हो जाए। एक सेकंड। हाँ, तो जब आप सजदे से उठेंगे तो बड़े आराम से उठेंगे, और आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जब आपकी कमर सीधी हो गई, आपने दुआ वगैरह पढ़ ली, फिर उसके बाद आप दूसरा सजदा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने सजदा किया, सजदे से वो उठते हैं, जो ही वो सीधे होने वाले होते हैं वो वापस आ जाते हैं, जैसे कि उनको कोई पीछे से धक्का दे रहा होता है। ठीक है, तो ये सही तरीका नहीं है। सजदों से उठकर दो सजदों के दरमियान, जब आप पहले सजदे से उठेंगे तो बड़े अच्छे अंदाज से उठेंगे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, सीधी रहनी चाहिए। मतलब आपको इत्मीनान से खड़े होना है। अल जुलूसु बैना सजदतैन, हाँ, दो सजदों के दरमियान आपको थोड़ी देर बैठना है। ऐसा नहीं कि आप, ठीक है आप उठे, आपने कमर भी सीधी कर ली, लेकिन फौरन आप वापस जाए, नहीं, आपने थोड़ा रुकना है। आपने थोड़ा जो है रुकना है बैन सजदतैन। वो दुआ भी आपको याद होगी, रब्बि ग़फिरली रब्बि ग़फिरली, या इसी तरह जो आप दुआ याद कर चुके हैं शायद, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वरजुकनी, वो दुआ है। तो ये दुआएं बड़ी ज़बरदस्त दुआएं हैं। मतलब ऐसी दुआएं हैं, अगर आप इन पे गौर करेंगे ना, ये ऐसी दुआएं हैं जिनकी हमें जिंदगी में अशद जरूरत होती है। अशद मतलब नमाज के बाद हम, या नमाज से पहले हम उन्हीं चीजों के बारे में परेशान होते हैं। रिजिक के बारे में परेशान होते हैं, तो इसमें दुआ है अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी, ए अल्लाह मुझे रिजिक दे। ठीक है, तो नमाज से पहले हम इसकी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, नमाज के बाद हम इसकी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन नमाज के अंदर हम रज़ाक के साथ रिजिक का तस्करा नहीं करते। कितनी अजीब बात है, रज़ाक के साथ, मतलब जो रिजिक रसा है, जो रिजिक देने वाला है, उससे हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं जो बेचारे खुद मोहताज है, खुद परेशान है। अजीब बात। तो अच्छा, अतुमानीनतु फी कुल्लिल अरकान, और एक रुकन क्या है, हर एक रुकन में आपने इत्मीनान इख्तियार करना है। इत्मीनान, आप क़याम में है तो इत्मीनान से रहिए। अब देखिए ना, इत्मीनान से रहने की कितनी ताकीद है। कहा गया कि अगर नमाज जमात खड़ी हो गई, आपका खाना आ गया, तो आपने क्या करना है, पहले खाना खाया। क्यों? क्योंकि अगर आपने खाना छोड़ा, नमाज में गई, तो आपको इत्मीनान नहीं रहेगा। कहा गया कि अगर आपको बोलो बराज आ गया है, तो बोलो बराज आते वक्त आपकी नमाज नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कहाँ इत्मीनान से कहाँ रहेंगे आप नमाज में। आप पहले उसको कज़ाए हाजत करके आ जाए, उसके बाद आप नमाज पढ़ें। तो तुमानीना, इत्मीनान होना चाहिए हर एक रुकन में, हर एक रुकन में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई है। वो हदीस क्या है? फरमाया कि बंदे खुदा 60 साल तक, 60 ईयर्स तक नमाज पढ़ता रहता है।
ٹھیک ہے، لیکن لم تقبل صلاتہ، لیکن اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. استغفر اللہ. ہوش کرے ہوش. 60 ایئرس تک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی اس کی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ اس کا رکوع ہی صحیح نہیں ہے، اس کے سجدے ہی صحیح نہیں ہے، وہ اس نماز کے ارکان کو ہی صحیح انداز سے نہیں کر رہا ہے، تو کہاں اس کی نماز قبول ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ارکان کے اندر جو اطمینان ہونا چاہیے وہ اطمینان نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے. اچھا، التشہد الاخیر، آخری تشہد. آخری تشہد سے مراد ہے وہ تشہد جس کے بعد آپ سلام پھیرنے والے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مغرب نماز ہے، مغرب نماز میں 2 تشہد ہیں، ایک 2 رکعت کے بعد ہے، اور دوسرا تشہد جس کو ہم آخری تشہد کہیں گے وہ تیسری رکعت میں ہے، کہ اسی میں آپ کو سلام پھیرنی ہے، اسی کو کہتے ہیں التشہد الاخیر، آخری تشہد. آخری تشہد یہ رکن ہے، یہ رکن ہے. اچھا، پہلا تشہد وہ واجب ہے، وہ واجب ہے. واجب اور رکن ہونا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ہم آگے پڑھیں گے، کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر رکن چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اس کو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا، الجلوس، الجلوس للتشہد الاخیر، آخری تشہد کے لیے بیٹھنا. تشہد کہتے ہیں اصل میں شہادت کہنے کو، جو ہم شہادت کہتے ہیں نا، اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے نا شہادت ہے، یہاں پہ تشہد ہے، اسی وجہ سے اس کو تشہد کہا گیا، تشہد کہا گیا. اچھا، الجلوس للتشہد الاخیر، اس تشہد کے لیے آپ کو بیٹھنا بھی ہے. الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے درود بھی بھیجنا ہے. جب آپ نے اتحیات پڑھا اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں. درود ابراہیمی آپ کو یاد ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگرچہ یہ پہلے تشہد میں بھی سنت ہے، کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی، زیادہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت زیادہ نہیں کی ہے. کبھی کبھی پڑھنا چاہیے لیکن ہمیشہ نہیں. لیکن آخری تشہد میں درود ہمیشہ ہمیشہ پڑھنا ہے، کیونکہ رکن ہے. الترتیب بین الارکان، یہ جو ارکان آپ نے ابھی تک سنے، ان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہے. ارکان میں سے پہلے کیا ہے، قیام. ٹھیک ہے، آپ کو کھڑے رہنا ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنا ہے، قراءت کرنی ہے فاتحہ کی، رکوع کرنا ہے. اسی طرح ان کے درمیان جو جس آرڈر میں یہ ہیں اسی آرڈر میں آپ کو ان کو نبھانا ہے. ایسا نہیں کہ آپ پہلے سجدہ کریں گے پھر رکوع کریں گے پھر قیام کریں گے، ایسا نہیں. وہ ریورس میں آپ کو نہیں جانا ہے، جو ویڈیوز وغیرہ آتے ہیں نا آج، یہ ریورس میں ہوتے ہیں، ریورس میں، ایسا نہیں ہے. اچھا، التسلیم، التسلیم، تسلیم مطلب ہوتا ہے سلام پھیرنا، سلام. تو سلام پھیرنا بھی ارکان صلات میں سے، ارکان صلات میں سے کم ایک طرف سلام پھیرنا ضروری ہے، کم سے کم، کم سے کم. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ارکان الصلات، کتنے ہیں، اربعۃ عشرہ، 14، 14. تو ابھی ہم آتے ہیں اپنی کتاب کی طرف، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں
ये सारी चीजें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। इन अरकान में से किसी एक रुकन को आमदन छोड़ देने से नमाज बातिल हो जाती है। ठीक है। अगर सहवन छूट जाए तो याद आने के बाद उसको अदा करके सजदे सहव कर लेना चाहिए। यानी आपको किसी रकात में या किसी रकात में आप रुकू करना भूल गए, तो आपने वो रकात ही दोहरानी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रुकू करेंगे, नहीं, वो रकात ही दोहरानी, क्योंकि वो रकात ही बातिल हो गई। वो रकात आप दोहराएंगे, और उसके बाद रकात से सलाम फेरने के बाद आप दो सजदे करेंगे। सजदे सहव जिसे कहते हैं। सजदे सहव के अहकाम इंशाल्लाह अलग से आएंगे आगे। तो उसके क्या अहकाम है वो अलग से आएंगे कि किस गलती पे सजदा सहव करना है और कब करना है। सलाम फेरने से पहले सजदा सहव कब करना है, सलाम फेरने के बाद सजदा सहव कब करना है, ये सारे मसाइल इंशाल्लाह आगे आएंगे। ये सवालात हैं, आप करेंगे खुद। हाँ, अरकान इन्हें रुकन की जमा है। अरकान कहते हैं ऐसे काम जो इबादत का हिस्सा हैं और इनके बगैर इबादत बातिल हो जाती है, इन्हें दुरुस्त नहीं होती। वाज़ेह रहे कि शुरूत नमाज से कबल हो अदा होते हैं, जबकि अरकान नमाज के अंदर होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि रुकन और शर्त के दरमियान क्या फ़र्क है। जो बाकी तफसील है ना, ये आप इंशाअल्लाह खुद पढ़ेंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो वो आप बताएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम अभी हमारा हो रहा है। तो इस 1.5 मिनट में किसी को कुछ पूछना हो बस जल्दी से पूछे, तो मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी। तो क्लास को आप एंड समझिएगा मीटिंग एंड होते ही। किसी को कुछ पूछना है जल्दी में तो वो पूछ सकता है। हैंड रेज करे जल्दी से जल्दी से। हाँ आरिफत। सर अगर ये तकबीर तहरीमा भूल जाएंगी उसको सारी नमाज दोहरानी है फिर? वो वो रकात दोहरानी है बस। बस एक ही रकात ही सारी नमाज? नहीं नहीं, वो रकात, अच्छा अगर वो भूल गया, जी। अगर उसने जानबूझकर छोड़ा तो वो नमाज ही बातिल है सारी। अच्छा ठीक। तो चलें नक्तफी बिहादल क़द्र। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।